कुछ स्टूडेंट्स जिनके 2-3 सब्जेक्ट रह गए मान लो, या 1 सब्जेक्ट रह रखा है। स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता नहीं है, जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, जो गेट के एग्ज़ाम पहली बार देंगे, उनको ये चीज़ पता नहीं है, एक 10 नंबर का हिडन सब्जेक्ट है। उनका क्या जो कॉन्फिडेंट नहीं है अभी तक, लाइक जो प्रिपेयर पूरा नहीं कर पाए हैं, जो चाहते हैं कि बस इतना मार्क्स आ जाए. Those are regarding the preparation. I will say कि So hey everyone, welcome back to our channel and I hope you all are doing great. So in this episode we have two of the famous personalities from GATE Computer Science. You must be knowing already. Even if you are new here and if you don't know them, I'd like to introduce them to you all. And so here we have Deepak Punia sir and Sachin Mittal sir, who are the co-founders of Go Classes and also IISc alumni. So in this video हम लोग बहुत बातें करेंगे कि सिंस यू नो कि गेट 2024 बहुत आ गया है सामने उसका डेट. तो इस वीडियो में हम लोग सब क्वेरीज करेंगे कि लास्ट मंथ में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं, ये सभी डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे. तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए. सो प्लीज कंटिन्यू टिल द एंड एंड या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो हेलो सर, can you all give a brief introduction about yourself? So hi Rohan, my name is Deepak Punia. I'm co-founder of Go Classes and I'm a GATE computer science faculty. Uh, Basically, for the last 6 or 7 years, I am in the field of GATE computer science, and I have in the last 6-7 years I have attempted the GATE computer science exam many times, and I have secured multiple times top rank in the GATE exam, like All India rank 53, All India rank 67, All India rank 107, 206, and so on. So basically, whatever experience I have of GATE computer science, because so many times I have already attempted the GATE exam with a good rank, so that experience I will share in this video. Yeah, Okay, hi sir. Rohan. Thanks for inviting. So I'm Sachin, and I'm also one of the co-founder at Go Classes. And as you said, I also graduated from IISc, and after IISc, I have worked at two companies. One of them was Xerox Labs, and after that, I work at Amazon as an applied scientist. So yeah, and regarding GATE, I've secured GATE All India ranked 33 in 2017. And after that, I have been into touch to all the subjects. So currently I'm full-time teacher and mentor at Go Classes. So, sir, let's start this podcast with this questions which generally aspirants have during this January month, like just before the GATE exam, right? So let's talk about since we have around 1 month left for GATE exam. So how can they effectively utilize this particular time period so that it can benefit them in GATE 2024? So those who have already, prepared well. So I will say that they should focus more on revision through PYQs. If they do GATE PYQs and they revise the concepts using the PYQs, then it will be the one of the very good strategy. And also they should timely attempt the mock test. So there is no fixed number that you should attempt like 10 or 15 or something. But if you have time, then I will say that you should be attempting good enough, which means that if if it suits you well, then maybe in every alternate day you can attempt. If it suits you well, then you can also attempt in 3 days or maybe in 2 days or 3 days, like that. Actually, Rohan, there are two times at which students they need more motivation. That is either at the beginning of the preparation, because if some student is starting their preparation in the month of February or maybe March, then they will think that I have too much time. Okay, I have enough time. कल पढ़ लूंगा, अगले दिन पढ़ लूंगा, एक थोड़ा कुछ 2-4 दिन मजे कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लूंगा. तो उस True. टाइम तो इस तरह की थोड़ी प्रोसेस रहती है कि टाइम बहुत है, तो इसलिए हाँ. वो टाइम वेस्ट करते हैं. उसके बाद में अभी उनके दिमाग में रहता है कि टाइम ही नहीं है, कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है, पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए, कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है. तो अब वो ये सोच-सोच के टाइम वेस्ट करते हैं. जो बीच का जो टाइम होता है, वो सब हर स्टूडेंट एकदम सही से पढ़ता है. सितंबर, अक्टूबर के महीने में कोई दिक्कत नहीं आती. लेकिन अभी स्टूडेंट जो है वो टाइम वेस्ट ये सोच के कर रहा है कि उसके पास टाइम ही नहीं है. और कुछ कुछ लोग बेसिकली उनको डरा भी देते हैं कि देखो लास्ट के 1 महीने के अंदर पढ़ना मत, कोई नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ना, सिर्फ एक काम करो, रिवीजन करो, उसके अलावा कुछ मत करो. तो इस तरह से बेसिकली स्टूडेंट जो है उसको लगता है कि यार मेरे पास कुछ करने के लिए अब टाइम नहीं है. मैं उन स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, टाइम है. कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ सकते हो जिनको आपने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है? वो टॉपिक्स बेसिकली ऐसे होने चाहिए जो फ्रीक्वेंट हों गेट के अंदर. अब गेट में मान लो पिछले 40 साल के अंदर उनमें से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, तो आप उस टॉपिक को स्किप कर सकते हो. लेकिन अगर उस टॉपिक में से 10-20 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ लो, टाइम है आपके पास, यू कैन स्टडी. तो एक तो ये पॉइंट. सेकंड चीज़, रिवीजन पे ध्यान दो, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करो.
और रिवीजन के साथ साथ गेट पीवाईक्यू थोड़े बहुत करो। ऐसा नहीं है कि आपने देखो आपने ऑलरेडी गेट पीवाईक्यू कर रखे हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो गेट पीवाईक्यू कर लेते हैं। तो अगर आपने ऑलरेडी गेट पीवाईक्यू कर रखे हैं तो जो भी टॉपिक आप रिवीजन कर रहे हो उसके कुछ गेट पीवाईक्यू कर लो। आप नॉर्मलाइजेशन जो टॉपिक है डीबीएमएस में उसका रिवीजन कर रहे हो तो एक काम करो, उसके 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक्चुअली उसमें 50 क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर 50 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है गेट में, लेकिन आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। आप गेट के क्वेश्चन True. सॉल्व कर रहे हो तो वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे कि यार वो आपको अच्छा फील करवाएंगे, तो वो कर लो। और साथ में मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देते कि उनको लगता है यार मेरी परफेक्ट प्रिपरेशन नहीं है, वो इंतजार करते हैं कि यार मेरी एक बार परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगी ना, जब मैं एकदम True, भगवान बन true. जाऊंगा हर सब्जेक्ट का, तब दूंगा। जबकि उनको ये नहीं पता रहता है कि एक बॉटम अप अप्रोच भी होता है, लाइक तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके बाद तुमको गैप्स पता चल रहा है कि तुमको क्या नहीं आता है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करो, वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इंस्टेड ऑफ कि तुम पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर मॉक टेस्ट देने बैठो। तो उससे बिल्कुल। बेटर है कि तुम मॉक टेस्ट दो, तुम्हारा कहाँ लैग हो रहा है वो समझो, उसके बाद बॉटम अप अप्रोच करके प्रिपरेशन करो। कुछ स्टूडेंट्स जिनके 2-3 सब्जेक्ट रह गए मान लो, या एक सब्जेक्ट रह रखा है, अभी तक हम्म। उन्होंने एक सब्जेक्ट कवर नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट तो ये सोचता है कि यार मैं पूरा सिलेबस कवर करने के हाँ, बाद मॉक टेस्ट हाँ, दूंगा। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि मैं रिवीजन करके मॉक टेस्ट दूंगा। बेसिकली अरे वो मॉक टेस्ट से थोड़ा-सा डर रहे हैं। डर रहे, ट्रू, सिंपल सी ट्रू। बात इतनी सी है। तो उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट की कोई कमी तो है नहीं। जो भी आपने टेस्ट सीरीज़ ले रखी है, उसके अंदर आजकल तो भर-भर के मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है? तो जैसे गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ का मैं बता दूँ, उसमें 15 मॉक टेस्ट हैं। तो मॉक टेस्ट की कोई कमी नहीं है। तो आप मॉक टेस्ट दो आराम से। 2-3 मॉक टेस्ट आप थोड़ी अपनी इम्परफेक्ट जो प्रिपरेशन होती है ना, उसके साथ दे दो। इसको हाँ, ऐसे देखो ना कि आपने जितना कवर right. कर रखा है, जितना रिवीजन कर रखा है, जितनी नॉलेज आपके पास है, उसमें से आप कितने नंबर ला सकते हो, वो तो देखो। सर ये तो बात रही कि लाइक आपने बताया जिनका प्रिपरेशन हो गया ऑलमोस्ट, या फिर लाइक थोड़ा सा बचा हो ऐसा करके, तो लाइक उनका क्या, जो कॉन्फिडेंट नहीं है अभी तक, लाइक जो प्रिपेयर पूरा नहीं कर पाए हैं, जो चाहते हैं कि बस इतना मार्क्स आ जाए कि मेरा लाइक कुछ किसी एनआईटी में हो जाए, या फिर लाइक कोई लाइक ओल्ड तो नहीं हो पाएगा डेफिनेटली, क्योंकि ओल्ड के लिए तो ओल्ड आईआईटीज के लिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट लाइक न्यू आईआईटीज या फिर लाइक टॉप लेवल एनआईटीज में हो जाए, तो उनके लिए क्या लास्ट 1 मंथ में वो कर सकते हैं? दूसरा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन आई विल से कि कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिनके लिए प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है। एक हमने भी मतलब गो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक हमने भी सेशन लिया हुआ है जिसमें मस्ट स्टडी टॉपिक्स करके हमने बताया, लाइक जिनका प्री रिक्विजिट नहीं है या फिर इनको कितने टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। तो आपका प्रिपरेशन फॉर एग्जांपल आप लाइक फॉर एग्जांपल आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सोचा है कि बिल्कुल ही छोड़ के जाना है, तो फिर हैं जैसे 1-2 टॉपिक्स हैं, है ना? उनको आप कर लोगे तो मोस्ट प्रोबब्ली 2 से 3 नंबर तो आपके आ जाएँगे। आप 2 दिन दे रहे हो, 3 नंबर आ रहे हैं तो मतलब कोई इसमें हार्म तो है नहीं, मतलब अच्छी बात है ऑब्वियसली, है ना? 2 से 3 नंबर आप मोस्ट प्रोबब्ली स्कोर कर सकते हो अगर 2-3 दिन में आप इतना कर रहे हो तो। तो मोस्ट मतलब फ्रीक्वेंट टॉपिक्स कर लो और गिव अप मत करो। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट, मतलब काम माइंड से आप अपनी प्रिपरेशन करो, गिव अप मत करो। जो आपने कर लिया उसको रिवाइज़ करो, जो नहीं किया इस उसके फ्रीक्वेंट टॉपिक्स कर लो। अब गेट एग्जाम के अंदर एक और चीज बताता हूँ। स्टूडेंट्स को ये चीज पता नहीं है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं ना, जो गेट के एग्जाम पहली बार देंगे, उनको ये चीज पता नहीं है। एक दस नंबर का हिडन सब्जेक्ट है। हिडन सब्जेक्ट है जो 10 नंबर का है। वो है सिली मिस्टेक्स और टाइम मैनेजमेंट का सब्जेक्ट। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आप खुद देख लो रोहन, आप जब आपने गेट की एग्जाम दी थी उसके अंदर आप चेक करो कि कितने कितने ऐसे 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत सिली मिस्टेक आप करके आए हो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फॉल्स कौन से हैं, आप ट्रू करके आ रहे हो। क्वेश्चन ट्रू, पूछ रहा है अनडिसाइडेबल क्या है, आप डिसाइडेबल करके आ रहे हो। क्वेश्चन के अंदर आप कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? या फिर कुछ आपने कोई डेटा आपने पढ़ा नहीं, मतलब समझ रहे हो? इतनी सिली मिस्टेक्स 4 या 5 क्वेश्चन के अंदर भी अगर आपने सिली मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो क्या होगा? 4 या 5 क्वेश्चन है, मान लो कि उनसे वो 4 या 5 क्वेश्चन भी गए, उनकी वजह से नेगेटिव मार्क्स भी आ गए। नेगेटिव, या तो ट्रू। स्टूडेंट जो पहली बार गेट के एग्जाम दे रहे हैं, वो उनको ये चीज़ समझनी है कि 10 नंबर का ऑलमोस्ट या 7 से 10 नंबर का एक हिडन सब्जेक्ट है। उस हिडन सब्जेक्ट का भी ध्यान रखो, और उसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपकी तैयारी आपने जितना आपने पढ़ा हुआ है, उसमें उसमें मान लो कि उसकी वजह से आप मान लो कि 70 नंबर लाने के कैपेबल हो। ठीक है, आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, हटा दो सब्जेक्ट, 10 नंबर का सब्जेक्ट आएगा ज्यादा से ज्यादा। किसी भी सब्जेक्ट के 10 नंबर से ज्यादा मार्क्स नहीं आते, राइट? मेरे ख्याल से ऑन मैक्स एवरेज एप्टीट्यूड का बस 15 का आता है, एक बाकी सब एप्टीट्यूड 15 अराउंड। नंबर का है, उसके अलावा हाँ, कोई हाँ, भी सब्जेक्ट है वो 10 नंबर से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, नहीं है, ट्रू। सब्जेक्ट इतने ही है, 6 से 9 के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, राइट? Good. तो हाँ, मान लो कि आपका एक सब्जेक्ट आपने कवर अभी तक नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हटाओ उसको, अभी भी 90 नंबर का पेपर बचा। गेट कंप्यूटर साइंस के अंदर ऑन एवरेज, मैं ऐसे इजी पेपर की बात नहीं कर रहा, जैसे 2023 के अंदर तो इजी पेपर था, टॉपर के 90 नंबर बन गए, लेकिन ऑन एवरेज टॉपर के बनते हैं 83 नंबर।
आपने हाँ। रोहन आपने 2021 में गेट एग्जाम दिया था, मेरे ख्याल हाँ। से वो 2021 में तो कट ऑफ और भी नीचे थी, नीचे है थी। ना? बिल्कुल नीचे थी। उसके अंदर तो मेरे ख्याल से 70 नंबर के ऊपर लोगों की टॉप 50 या 70 नंबर पे टॉप 50 रैंक आई थी, ठीक है? 70 नंबर पे, हाँ हाँ, टॉप 50 ट्रू। मेरी खुद की शायद मेरी खुद की रैंक उस टाइम शायद 206 थी। तो मुझे वो चीज़ मुझे वो चीज़ हाँ। याद है, मेरा सेट 2 था। तो एनीवे बात ये है कि आप जितने मार्क्स लाने के कैपेबल हो, आपने एक सब्जेक्ट अभी तक आपने नहीं किया, हटाओ ना उसको, हटाओ। 90 नंबर का पेपर अभी भी आपके पास है। मतलब अभी भी आप सिंगल डिजिट रैंक ला सकते हो देखा जाए तो, ठीक है? हाँ। उसमें से चलो 10 नंबर और हटा दो। उसमें से चलो आप 10 नंबर और हटा दो, मतलब 70 बचे। अभी भी 70 बच गए ना। 70 नंबर के ऊपर आप टॉप 100 रैंक पक्की ला सकते हो। समझो मैंने कितना हटा दिया मैंने। मैंने 30 नंबर सीधे-सीधे हटा दिए। 70 नंबर की आपकी नॉलेज है, मतलब 70 नंबर लाने के आप कैपेबल हो, ठीक है? गेट के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद जब आप गेट का एग्ज़ाम पेपर देखोगे, तब आपके दिमाग में रहेगा कि यार ये भी मैं कर सकता था, ये भी मैं कर सकता था। मैं 70 नंबर ला सकता था। तो आप 70 नंबर लाने के कैपेबल हो और उससे आपकी टॉप 100 रैंक भी आ जाएगी। लेकिन आप क्या करोगे? आप सिली मिस्टेक कर दोगे। 5 या 6 क्वेश्चन के अंदर आपने सिली मिस्टेक कर दी। सीधा आपका जो मार्क्स हैं वो 70 नंबर की बजाय थोड़ा टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हुआ। आप 1 क्वेश्चन के अंदर आपने 10 मिनट लगा दिए। 3-4 क्वेश्चन के अंदर आपने आधा घंटा लगा दिया। टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, ठीक है? तो अब आप देखो आपका जो 70 नंबर आप ला सकते थे, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं, सिली मिस्टेक और टाइम मैनेजमेंट, ये जो 2 हिडन जो चीज़ें हैं, उनकी वजह से आपके मार्क्स कितने चले गए? सीधे 55 चले गए, 55 चले गए, राइट? तो वो डिफरेंस है। वो डिफरेंस वहीं क्रिएट हो जाता है। Okay, sir. So, thank you, Sachin sir and Deepak sir for joining today. So, I hope the student will get some benefit from this session. And so, hey everyone, अगर आप लोगों को अगर कुछ और doubt है, so you can comment it down below. We can try to resolve it as soon as possible. And I hope कि तुम लोगों को like ये session अच्छा लगा होगा. So yeah, that's it for this video, guys. And we'll meet you in the next video soon. तब तक के लिए goodbye and yeah, all the best. Okay. Thank you, Rohan, and Thank you, Thank all you, the Rohan. best, sir. everyone. All the best, everyone. Like this video, subscribe to Rohan's channel. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see